Are you excited to continue our series on the book of Ecclesiastes? क्या आप आज सुबह के समय उत्तेजित है कि हम सबोपदेशक की पुस्तक से लगातार आगे बढ़ते चले जाएं? How many of you think like I'm getting too much wisdom? आप में से कितनों को ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत बुद्धि पा रहे हैं पिछले दिनों Because से? book of Ecclesiastes is all about wisdom, right? क्योंकि सबोपदेशक की पुस्तक पूरी रीति से बुद्धि के बारे में बातें करती है। Scholars have classified Ecclesiastes under the category of wisdom literature. हमारे जो धर्म वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने इस किताब को एक ऐसा शास्त्र बताया है जो बुद्धि का शास्त्र है। So far we have had 8 lessons from the book of अभी Ecclesiastes. तक हम लोगों ने 8 पाठों को पढ़ लिया है इस सबोपदेशक की पुस्तक से। And Ecclesiastes has 12 chapters. और सबोपदेशक की पुस्तक में 12 अध्याय हैं। I can honestly go on for maybe another 2 or 3 months from the book of और Ecclesiastes. सबोपदेशक की पुस्तक से मैं लगातार 2-3 महीने के लिए आगे चलता चला जा सकता But हूँ। I'm thinking to come to a conclusion on this series by next Sunday. लेकिन मैं अगले रविवार में इस श्रृंखला को जो सबोपदेशक की पुस्तक से हमने शुरू की थी उसे खत्म कर And then दूंगा। we will enter a new season of teaching the word. और फिर हम एक नए सत्र में जाएंगे जिसमें हम एक नए अध्याय के साथ परमेश्वर के So वचन से today पढ़ेंगे। is sermon number 9 from the book of Ecclesiastes, and we're going to turn to Ecclesiastes chapter 11 verses 7 to 12, chapter 12 verse 1. और हम आज सबोपदेशक की पुस्तक 11वें अध्याय के 7वें पद से लेके 12वें अध्याय के पहले पद तक पढ़ेंगे और ये हमारा आज 9वां संदेश है जो सबोपदेशक की पुस्तक Let's से है। join hands with Solomon, who wrote this book, in finding meaning and purpose in life. आइए सुलेमान के साथ हाथ जोड़ लें ये जानने के लिए कि हमारे जीवन का मकसद और उद्देश्य क्या है। And today's book, today's message is titled "The Best Days of Your Life." और आज सुबह संदेश का शीर्षक है कि हमारे जीवन के उत्तम दिन। And as we come to this chapter, Ecclesiastes chapter 11, we are coming to the end of the main body of the book of और Ecclesiastes. जब हम 11वें अध्याय में आ रहे हैं तो हम इसका जो एक ढांचा है उसके अंत में पहुंच रहे हैं। What I find about Ecclesiastes is that it reminds us of our human mortality. जब हम सबोपदेशक की पुस्तक में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये इंसान के जो एक मृत्यु जो इसका एक मृत्यु दर है उसके बारे में उसको एहसास दिलाता है। Where God is infinite and mankind is finite. क्योंकि परमेश्वर जो है वो असीमित है और हम जो है वो सीमित हैं। And the more you read, the more you understand, man, I'm not really the superman or the superwoman that I think I am. और जब हम पढ़ने लगते हैं तब हम ज्यादा जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि जितना मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुपर सोचता हूं उतना मैं हूं नहीं। And that's why the writer, the preacher, the Solomon is wrestling with the meaning of life under the sun. इसलिए सुलेमान जो है यहाँ बहुत संघर्ष कर रहा है ये जानने के लिए कि जीवन का मकसद और उद्देश्य क्या है। So chapter 11 and chapter 12 is kind of the summary and the research findings, the results of his research that he has been doing, the thesis that he has been writing, chapter 1 to chapter 11. इसलिए सबोपदेशक की पुस्तक का 11वां और 12वां अध्याय एक ऐसी खोज है जो सुलेमान यहाँ कर रहा है। So he has taken us on this tour of the fallen world and the vanity of life under the sun, S-U-N. और वो हमको जो है एक यात्रा से होकर लेकर जाता है जहां वो बताता है कि सूर्य के नीचे सब कुछ व्यर्थ ही है। Now he is coming to the conclusion and he's directly telling us on our face, this is what I found after searching for meaning in everything that I can put my hand on life under the sun. और अब वो इस निष्कर्ष पे आ गया है अंत में कि जिस चीज पे भी वो हाथ लगाएगा सूर्य के नीचे वो व्यर्थ ही है। So today we're going to look at the scope of human life from the beginning to the end as the preacher gives us some final counsel for both the young and those of us who are old. तो इसलिए आज हम देखने जा रहे हैं कि वो सीमाएं क्या है जहां पर एक जो बुजुर्ग है या एक जो जवान है उसके जीवन के लिए हर चीजों के बारे में क्या मतलब है। What is the advice? What is the buddhi? What is the counsel that he want to share with
with the young and the old. क्या वो जवानों को और बुजुर्गों को क्या सलाह देना चाहता है उसके बारे में हम देखेंगे। So let's look at the wisdom that God's word want to give us today. आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या बुद्धि देता है। First thing that I learned here, सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ सीखी, verse 7 to 8, chapter 11, verse 7 to 8. 11वां अध्याय उसके 7वें और 8वें पद में It says, begin by saying in verse 7, light is sweet and it pleases the eyes to the sun. However, many years anyone may live, let them enjoy them all, but let them remember the days of darkness, for there will be many, everything to come in meaningless. यहाँ ऐसा लिखा है, उजियाला मनभावना होता है और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीता रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे में के दिनों बहुत होते हैं, जो कुछ होता है व्यर्थ ही है। So Solomon is saying, in the light of everything that we learned so far, let me encourage you to learn to enjoy life. इसलिए सुलेमान कहता है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, हमें यह सीखना है कि हमें अपने जीवन में आनंद उठाना है। Life is too short and it is not to be lived as a miserable person. जीवन बहुत ही हमारा क्षणिक है, बहुत थोड़ा है और हमको इसको बहुत दुख में नहीं बिताना है। And so he is saying, let us live in the beauty of life. इसलिए वो यहाँ कहता है सुलेमान कि हमको अपना जीवन आनंद में और मन भावना होकर बिताना है। He is saying light is sweet. वो कहता है कि उजियाला मन भावना है। In the Hebrew language, when literature they write light is sweet, it means life is good. जब इब्रानी हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कि उजियाला मन भावना है का मतलब है कि जीवन अच्छा है। Life is good and to live to see another day is a blessing. जीवन अच्छा है और एक और दिन देखना अपने जीवन में ये एक आशीष की बात है। So the admonition to us today from Solomon is enjoy life. इसलिए सुलेमान की तरफ से जो हमें चेतावनी मिल रही है वो ये है कि अपने जीवन का आनंद उठाओ। Now I know we are very excited to hear that encouragement today. मुझे पता है कि हम सब बहुत उत्साहित है कि हमें ऐसा उत्साह मिले। Imagine our parents telling our young ones, daughter, son, go enjoy your life. कितना आप सोचिए इस बात को कि एक माता पिता एक जवान बच्चे को अपने घर में बोले, तुम जाओ बेटा बेटी अपना जीवन का आनंद उठाओ। I'm sure that's what we love to hear. मुझे पता है कि हम सब यही सुनना चाहते हैं। So today you are hearing what you always wanted to hear. तो आप आज वो सुन रहे हैं जो आप हमेशा सुनना चाहते थे। Only few people have smile on their face still. सिर्फ कुछ लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट है इस समय। Some people are still sad and gloom. I don't know what happened to you this morning. अभी भी कुछ लोग हैं जो उदास होकर बैठे, मुझे नहीं पता क्या बात है। Solomon is saying life is good, my friend. Smile. Therefore, सुलेमान this कहता है morning. मित्रों जीवन अच्छा है इसलिए मुस्कुराएं आज सुबह के And so समय। first and foremost, he says there is the days of sunshine. इसलिए वो सबसे पहली बात कहता है कि सूर्य की उजियाला जो है वो है, The days of sunshine. सूर्य की रोशनी का दिन। Now we know that exposure to sunlight releases serotonin in our body. जब हम सूर्य की ओर अपने आप को देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से एक सेरोटिन करके कोई चीज है जो Serotonin. Serotonin is a chemical that helps you to balance your mood, the mood swings that you have. तो एक सेरोटोनिन करके ये एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है जो हमको मदद करता है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण करें। Serotonin also calm our anxiety. ये जो चीज है वो धातु एक ऐसा है जो हमारी चिंता से भी उत्पन्न होता है। Serotonin also helps with the digestion in our stomach. ये हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। And there are many other wonderful benefits of serotonin. और इसके और भी बहुत से लाभ हैं जो हमें मिलते हैं। Simply being under the sun that God created is good for us. साधारण रूप में जो परमेश्वर ने सूर्य बनाया है उसके नीचे रहना हमारे लिए अच्छा है। But unfortunately today we live in a culture and a society, we want fair looking skin, we want white looking skin. So what do? We stay indoor, we don't go to the sun. लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समय में हमारी संस्कृति ऐसी है कि लोग नहीं चाहते कि उनकी जो चमड़ी है वो जल जाए, तो लोग धूप से बचने के लिए अपने आप को बंद जगह में रखते हैं। So I see even on a hot scorching summer day
day girls wearing these long gloves on their hand so that their hands and their fingers are not getting suntan. इसलिए हम देखते हैं कि कड़की धूप में जो है लड़कियां ऐसे दस्ताने पहन लेती हैं ऊपर तक कि उनको धूप ना लगे बिल्कुल भी. Maybe this lack of exposure in the sun is part of the problem. We have a lot of angry gussa people around us. शायद धूप में ना अपने आप को लोगों का जो दिखाना है, इसी कारण से कई बार बहुत क्रोधित लोग होते हैं So हमारे maybe आसपास. what you need to do with your angry child is put that child in the sun for a while. इसलिए क्या करना चाहिए, जो बच्चे क्रोधित होते हैं उनको कभी-कभी धूप में बिठा देना When चाहिए. we were small kids and we misbehaved, that's what the teachers did. जब कभी-कभी बचपन में हम लोग बदमाशी करते थे तो हमारी टीचरें भी ऐसे करती They थी will हमारे never साथ. punish you to stand under the beautiful air-conditioned room. वो कभी भी तुमको ठंडी सी जगह में तुमको वहां पे ताड़ना नहीं देती थी. Go and stand in the ground under the sun for 1 hour. वो कहती थी जाओ उस मैदान many of you में did धूप के that? नीचे खड़े हो जाओ 1 घंटे Some के of लिए. you can relate to that experience. आप में से कुछ लोग उस चीज के प्रति वापस याद कर सकते हैं. So Solomon is saying it is a sweet thing to be alive with your eyes open, basking the glorious sun on your skin. सुलेमान कह रहा है ये कितना ही मन भावना है कि हम धूप में अपने आप को दिखाते हुए धूप से अपने शरीर के ऊपर उस धूप का आनंद उठाएं. So while life under the sun, that sun that Solomon is talking about, everything is vanity, everything is meaningless, there is some benefit to being under the sun after all. जब सुलेमान ये कह रहा है कि सूर्य के नीचे रहने में हर चीज व्यर्थ है, उसी ही समय में सुलेमान ये भी कहता है कि सूर्य के नीचे आनंद भी, हम उसका लाभ भी उठा सकते My हैं. dear friends, every day when you get up in the morning and you see the sun, the brightness of the sun coming through your window, that should make you joyful. I thank God that I'm alive today to see this sunlight. जब आप सुबह के समय उठते हैं तो आप लोगों को जरूरी है कि जब वो सूर्य की किरणों को आप देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें उस दिन के लिए. I lived in Melbourne, Australia for quite a long time as a young boy. मैं एक जवान लड़का होकर बहुत सालों के लिए, कई सालों के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहा. And Melbourne has crazy weather. और वहां का जो मौसम है वो बड़ा अजीब सा है. Any given single day you can experience 4 seasons. एक ही दिन के अंदर आप 4 प्रकार के मौसम को महसूस कर सकते So हैं. in my car I used to have an umbrella at all times. तो मेरी कार में हमेशा एक छाता हमेशा रहता था. I had a big coat, raincoat at all times. और एक रेनकोट हमेशा मेरे साथ रहता था. And I will have a sweater. और एक मेरे पास And I have a hat. और मेरे पास एक टोपी भी होती थी. And I always have a pair of shorts and a t-shirt. और हमेशा मेरे पास शॉर्ट्स होते थे और टी शर्ट होती थी. Because when you set out to go for something, you never know what the weather is going to be like. क्योंकि एक बार अगर तुम निकल गए घर से तो तुम्हें ये नहीं पता कि मौसम कैसा होने जा रहा है. But the day the sun is out, लेकिन जिस दिन सूर्य निकला होता you है, have to see those Australians in Melbourne. आपको देखना चाहिए कि मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन लोग जो है वो कैसे They are व्यवहार करते so हैं. happy. वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं. Everybody, even to the strangers, when they walk on the street, they will, good day, mate. तो जो अनजाने लोग भी होते हैं एक दूसरे को देखकर कहते हैं आज का दिन बड़ा ही अच्छा है. Good day, mate. In the shopping mall and the street, restaurants, everybody is saying, what a beautiful day today. सब लोग इधर उधर, चाहे आप मॉल बोले चाहे खाने की जगह बोले, सब लोग खुश होकर एक दूसरे से कहते हैं कितना अच्छा दिन है आज. People don't get enough sun understands the value of sun. जो लोग ज्यादा जिनको सूर्य नहीं मिलता वो सूर्य की कीमत को समझते हैं. Think of those people who live in Alaska and many of those people in the northern pole. कई लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं उत्तरी पोल और अलास्का जैसी जगहों में, They have sunlight for just an hour or 2 in 24 hours. 24 घंटों में सिर्फ 1 घंटे के लिए उन्हें सूर्य की रोशनी मिलती And है. some of those people are the most depressed people in the world. Did you know? और कई लोगों में से वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को निराश महसूस करते हैं. Do you wake up with an appreciation of God's gift of life that is given to you? क्या आप प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं तो आप परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है उसके लिए आप उसके प्रति आभारी होते हैं? Do you neglect to give thanks to God for the breath that you have? जो परमेश्वर ने हमें सांसें दी हैं, क्या हम उसके प्रति परमेश्वर को धन्यवादित होने से बचते हैं? Each day, do you just go about doing things without realizing how beautiful life is? क्या आप अपने जीवन को
प्रतिदिन ऐसे बिताते हैं कि जीवन कितना ही खूबसूरत है। When was the last time you took the plate of food that you were about to eat, and as you put the food in your mouth, you just enjoyed it and said, "Wow, I thank God for this food. This food is delicious." कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने अपनी प्लेट ली खाने की और पहला निवाला मुंह में डालकर बोला कि परमेश्वर ये खाना कितना ही अच्छा है। A grumbling spirit, a complaining spirit clogs the thanksgiving you ought to give to God. एक जो बड़बड़ाने बुड़बुड़ाने वाली जो आत्मा होती है एक इंसान के अंदर, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने से हमेशा चूक जाती है। Many of you don't realize how much blessed you are until what you have is taken away from you. कई बार हम में से कई लोग परमेश्वर की आशीषों को अनुभव नहीं करते हैं जब तक वो आशीषें हमसे छीन नहीं ले जाए। If you opened your eyes today to see the light of the sun, अगर आज आप अपनी आंखों को खोलते हैं उस परमेश्वर की सूर्य की रोशनी को देखने के लिए, God has given you a pleasant gift. परमेश्वर ने आपको एक बहुत ही उत्तम तोहफा दिया है। Even Jeremiah could say in his great lamentation, और यिर्मयाह भी अपने विलाप में ये कह पाता है। chapter 3 verse 22 to 23, Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. और वो यिर्मयाह के तीसरे अध्याय के 22वें और 23वें Turn to पद your में Bible. कहता है, Jeremiah says, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness." यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम मिट नहीं गए क्योंकि ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति बोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। If you look at Lamentations chapter 3 and if you start reading the early part of that chapter, prophet Jeremiah is talking about the tragedy of being despair and sorrowful and how it will kill your life. और हम यहाँ देखते हैं विलाप गीत की पुस्तक के शुरुआती अध्याय में अगर हम देखें, जो यिर्मयाह है वो बता रहा है कि जीवन में कितनी निराशा है और कितनी परेशानियां हैं। And so he says, the prophet Jeremiah says in Lamentations chapter 3, don't live in your sorrow. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यिर्मयाह कह रहा है तीसरे अध्याय में कि अपने दुखों में अपना जीवन मत बिताओ। Don't live in your negativity. अपनी नकारात्मक सोच में जीवन मत बिताओ। But he says in verse 22 and 23, turn your attention from your sorrows into the faithfulness of God. और यहाँ पर वो 22वें 23वें पद में कहता है कि अपने दुखों से अपनी आंखें उठाकर परमेश्वर की करुणा, महाकरुणा और उसकी दया के ऊपर अपनी आंखों को लगाओ। Great is your faithfulness. परमेश्वर तेरी करुणा महान है। Remember that old hymn? क्या आपको पता है वो पुराना गीत? If Jeremiah could utter such words, अगर यिर्मयाह ऐसे शब्दों को अपने मुंह से बोल पाया, weeping over the destruction of Jerusalem, यरूशलेम के नाश के ऊपर अगर वो विलाप कर पाया, what is stopping you and me? आज आपको और हमको क्या चीज रोकती है? Because it's been raining for 24 hours, we are sad, upset, angry. क्योंकि 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए हम दुखित हैं, क्रोधित हैं। Do you see the mercy of God even this morning? क्या आज सुबह के समय भी आप परमेश्वर की करुणा को अनुभव करते To हैं? live, जीवन जीने के लिए, to breathe, सांसों को लेने के to लिए, feel the warmth of the sun on my skin. परमेश्वर के द्वारा दिए गए सूर्य की रोशनी की गर्माहट को महसूस करने के लिए। What sweetness it is to be alive. ये कितना मन भावना है कि आज सुबह के समय हम जीवित हैं। So enjoy the sun, इसलिए सूर्य का आनंद उठाएं, enjoy the life. जीवन का आनंद उठाएं। But लेकिन we must remember this. हमको इस चीज को जानना There है, is a day of darkness coming. एक अंधियारे का, अंधकार का दिन भी आ रहा है। Solomon says, सुलेमान कहता है, just as there is days of sun, there is also days of darkness. जैसे सूर्य के दिन होते हैं वैसे ही अंधकार के भी दिन होते हैं। We play Monopoly in our house when our kids were small. जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम ये खेल खेला करते थे जिसका नाम है मोनोपोली। Where what we do is to buy properties, accumulate wealth, take rent from everybody. How many of you played Monopoly? आप में से कितने लोगों ने ये खेल खेला है जहां पर हम दूसरे लोगों की चीजों को ले लेते हैं? Do you remember that feeling when you were the winning one and you accumulated so much wealth? क्या आप उसको अभी भी महसूस करते हैं कि आप दूसरे की सब चीजों को ले लेते हैं और
आपके पास बहुत कुछ हो जाता है। I just love watching Usha after she wins. मुझे बड़ा आनंद होता है जब मैं Oh my goodness, she has this stack of cash और उनके पास बहुत ढेर सारा पैसा and होता she है will flaunt it in front of everybody. और वो Look at my cash. और वो सबके सामने दिखाती हैं कि देखो मेरे पैसे को, Look at all my properties. देखो मैंने कितना ज्यादा कमा लिया Every है। time you enter into my property, you have to give me rent. और जब भी तुमको मेरी प्रॉपर्टी में आना है तो तुमको उसका किराया भरना है। But finally, लेकिन आखिरी में when the match is over, जब खेल खत्म हो जाता है what happens? क्या होता है? Everything goes back into the box. सब चीजें वापस उस डब्बे में चली जाती हैं। Everything goes back into the box. सब चीजें उस डब्बे में वापस चली जाती That हैं। to me is one of the most saddest moment of the game. सबसे ज्यादा दुखित समय मेरे लिए तभी होता है उस खेल का। That is what life is all about, isn't it? जीवन भी कई बार ऐसा ही है, ऐसा नहीं है क्या? At the end of the day, दिन के अंत में I just hope somebody will put me in a box. मैं ऐसी आशा करता कि कोई मुझे एक डब्बे में डाल देता। I'm just living at the mercy of somebody giving me a good-looking box at least. मैं किसी की दया में रह रहा हूँ कि कोई मुझे एक डब्बा दे दे बस। Amen. We all are going to end up in a box at the end of the day. हम अपने जीवन के अंत में एक डब्बे के बक्से के अंदर ही जाने वाले This हैं। ride is good. ये जीवन अच्छा है, This life is good. ये जीवन अच्छा है। But the day is coming when it is going to be dark. लेकिन एक दिन ऐसा आ रहा है जब वो अंधकार होगा। When we are young, जब हम जवान हैं, it is so easy for our hearts to be filled with optimism. ये बहुत ही आसान होता है हमारे जीवन के लिए कि हम अपने जीवन को सब आशा से भर दें। Your life is open before you. हमारा जीवन हमारे सामने खुला हुआ होता है। You are filled with the possibilities of everything that you could possibly do. आप अपने जीवन में वो सब चीजों को जो आप करना चाहते हो उससे भरे हुए होते हो। I remember driving my car as a 21-year-old man. 21 वर्ष का एक लड़का होकर मुझे अभी भी याद है कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। Speed didn't matter. उस समय जो गति थी वो मुझे चिंता नहीं करती थी। I cannot die. मैं मरूंगा नहीं, I will never die. मैं कभी मरूंगा ही नहीं। And so I could drive at any speed I तो want. मैं उस समय किसी भी गति में चला सकता But था। now I am 55. लेकिन अब मैं 55 वर्ष का हूँ। I realize that there is a danger that if I crash, I can kill मैं myself. महसूस करता हूँ कि अगर मैंने किसी से टक्कर मार दी तो मैं शायद मर सकता हूँ। And so in our young mind, we think about all these impossible things in our life. इसलिए जब हम जवान होते हैं तो हम अपनी बुद्धि में उन सब बातों के लिए सोचते हैं जो कभी हो ही नहीं सकती, असंभव है। We are filled with possibilities of dreams and ambitions. हम बहुत ही ज्यादा जीवन के लिए अभिलाषी होते हैं या बहुत ही सपनों को रखते हैं अपनी We are जवानी looking में। for what is that pleasure that I haven't enjoyed yet. हम ये सोचने लगते हैं जवान होकर कि ऐसा वो कौन सा आनंद है जो मैंने अपने जीवन में नहीं उठाया अभी But तक। as you get older, लेकिन जब आप थोड़े वृद्ध होने लगते you हैं, realize आपको महसूस हो that जाता है life is full of कि hardships, जीवन जो है वो संघर्षों से ही भरा हुआ है, that there is a lot of pain, कि उसमें बहुत ही दर्द है, there is a lot of effects of aging physically. उसमें शारीरिक रूप से हमारी उम्र होने का बहुत सा असर प्रभाव है। And over time, और we become crushed and we feel like our dreams have been crushed. और समय जैसे ही गुजरता जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सपने जो है वो बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं। We feel like we realize that life did not turn out to be the way I thought it will turn हम out. महसूस करने लगते हैं कि जैसे मैंने अपने जीवन के बारे में सोचा था वैसे मेरा जीवन पलटकर नहीं आया। And many people become very optimistic and they become very cynical about life. और कई बार कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के बारे में बहुत ही आशावादी हो जाते हैं। But if you are a wise person, you live under the wisdom of the age and maturity that life has taught you. लेकिन अगर आप एक बुद्धि के व्यक्ति हैं तो आप जब उम्र में बढ़ने लगते हैं तो आप अपनी बुद्धि में भी बढ़ते हैं। So at this stage in my life, इसलिए जीवन के इस सत्र में yes, I agree with Solomon. ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि मैं सुलेमान के साथ उस चीज के लिए मैं सहभागी हूँ। That everything that we fight for is vanity. जिस चीज के लिए भी हम युद्ध या लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब व्यर्थ ही है। The good look, अच्छा दिखना, the money, the wealth, the car, the house, everything is vanity. पैसा, संपत्ति, गाड़ी, घर जो भी है ये सब व्यर्थ ही है। And old age brings you to that kind of और understanding. जीवन में उम्रदार हो जाना हमको उस समझ की ओर लेकर चलता And है। so the preacher Solomon is
telling us, इसलिए प्रचारक सुलेमान हमसे ये कह रहा है, enjoy the sweetness of life whether we are 81 or whether we are 18. चाहे हम 81 वर्ष के हैं या हम 18 वर्ष के हैं, हमको अपने जीवन का आनंद उठाना है। Enjoy while it lasts. तब तक आनंद उठाना है जब तक वो आनंद का अंत ना हो जाए। Enjoy life as long as it lasts. जब तक वो आनंद हम ले सकते हैं, अंत तक आनंद उठाना Look है। at verse 8. 8वें पद को देखते हैं। So if a person lives many years, अगर एक व्यक्ति बहुत वर्षों के लिए जीवित रहता let है, him rejoice in them all. उन सबों में उसको आनंद उठाना है, But let him remember that days of darkness will be many. लेकिन उसको ये स्मरण रखना है कि अंधकार के दिन भी बहुत होंगे All that comes is vanity. और जो कुछ भी आएगा वो व्यर्थ ही होगा। And so old age brings to us its own pain and challenges. इसलिए उम्रदार हो जाना हमारे जीवन के लिए बहुत सी चुनौतियों को लेकर आता है। And so what is Solomon telling us? What do we need to do? यहाँ पे सुलेमान हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या करना है? How can we really enjoy this life whether you are young or whether you are old? चाहे हम जवान हैं, चाहे हम वृद्ध हैं, हमको अपने जीवन का आनंद कैसे उठाना है, सुलेमान यहाँ बताना चाह Let's रहा है। look at verse 9. 9वें पद को देखते हैं। Solomon says, rejoice, O young men, in your youth, यहाँ लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर and let your heart cheer you in the days of your youth. और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे Walk in the ways of your heart and the sight of your और eyes. अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। Now, what does that imply? यहाँ पर इसका क्या मतलब बनता है? Enjoy what you see. जो भी तुम देखते हो उसका आनंद उठाओ, Enjoy what your heart says to do. जो भी तुम्हारा दिल कहता है उसे कर दो। Now that sounds like exactly what Adidas and Nike and all these companies are telling us to do. और जो अलग अलग हमारे जो ब्रांड है वो हमको जो बताते हैं करने के लिए, ये वैसा ही लग रहा है सुनने में। Nike tells us just do it. नाइकी कहता है कि बस कर दो, Right? Just do it। Just do it. If you feel like it, do it. अगर तुम्हें महसूस जैसा हो रहा है वैसी कर लो। Is that how you enjoy life? क्या ऐसे हम अपने जीवन का आनंद उठाते हैं? Is that what pleasure going to bring you? क्या ये आनंद हमारे जीवनों में हमें लेकर आएगा? In fact, if you are doing that pleasure will destroy you. जबकि अगर आप वैसा वाला आनंद उठाएंगे तो वो आपके जीवन को नष्ट कर देगा। You will not live to be 80 years old to enjoy life. You will be finished by the time you are 25 or 30. आप 80 वर्ष तक जीवन जी ही नहीं पाएंगे, आप 25 या 30 साल में अपनी उम्र खत्म कर देंगे। I see young people today, their hands are shaking at the age of 25. मैं देखता हूँ कि आजकल जवान बच्चों का जो 25 वर्ष के, उनके हाथ कपाते हैं। They cannot hold a pen. वो अपना एक पेन नहीं पकड़ पाते हैं। They are suffering from the side effects of drug addictions that they were in. और जो वो गलत धातुओं को लेते हैं उसके द्वारा उनका शरीर को असर हो चुका है। Many of them cannot pass any more exams or do any more education कई लोग ऐसे हैं जो आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं, because their brain cells have been damaged. क्योंकि उनके जो दिमाग के अंदर जो उनके जो सेल है वो सब नष्ट खराब हो चुके हैं। And how many drug addicts are now giving birth to children who are disabled? They have no arms or no legs, or they have various deformities in their body because either mother or father was a drug addict, and that has resulted in having babies now who are not properly fitted with everything that they need. और आजकल ऐसे लोग जो सारे नशीले पदार्थ लेते हैं, जब उनके बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को हानि पहुंचाई है, इसलिए उनके बच्चे भी संतुलित पैदा नहीं हो रहे हैं और सामान्य बच्चे नहीं हैं। So what does Solomon means? Rejoice, enjoy your youth, enjoy what is under the sun. तो सुलेमान यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि सूर्य के नीचे अपने जीवन का आनंद उठाओ। Well, live responsibly. कहने की बात यहाँ पर यह है कि अपने जीवन को जिम्मेदारी के साथ बिताओ। If you are in Australia on the road, there will be a big sign. It says, drive responsibly. अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहां सड़क के कोने में एक ऐसा चिन्ह लगा है, सड़क के कोने, जो कहता है कि अपनी गाड़ी को सावधानी से या जिम्मेदारी से चलाओ। If you drink and drive, you are a bloody idiot. That's what it says in Australian roads. अगर आप पी कर चलाओगे तो तुम एक मूर्ख हो। So drive
इसलिए चलाओ, Driving is good. चलाना अच्छा है, Enjoy your drive. अपने चलाने का आनंद उठाओ, But don't drink and drive. लेकिन पीकर मत चलाओ। Live. जीवन जियो, Enjoy your life. आनंद उठाओ जीवन But का, not in a way that is going to destroy लेकिन you. ऐसा आनंद मत उठाओ कि वो तुम्हारे जीवन को नाश कर दे। Live responsibly. अपने जीवन को जिम्मेदारी के साथ बिताओ। Why? क्यों? Well, this present enjoyment is so good, वर्तमान का आनंद उठाना तो बहुत अच्छा है, but there is a future judgment. लेकिन इसके लिए एक भविष्य में आने वाला न्याय है। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु ही है। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। So the preacher is telling to the young people to enjoy life. इसलिए प्रचारक जो है जवान लोगों को ये कह रहा है कि अपने जीवन का आनंद उठाओ, Rejoice in the days of your youth. अपनी जवानी के दिनों में आनंदित रहो। Enjoy that strong back that you have right now. अभी जो आपके पास एक मजबूत आपका एक पीछा है, जो आपके अब एक जो मजबूती आपके पास है उसका आनंद उठाओ। The high metabolism that you have, enjoy it. जो आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली जो ताकत है उसका आनंद उठाओ। But look at verse 9. लेकिन 9वें पद को देखिए, Ecclesiastes chapter 11 verse 9. सब उपदेशक की पुस्तक 11वें अध्याय का 9वां पद। But know that for all these things God will bring you into judgment. यहाँ ऐसा लिखा है, लेकिन इन सब बातों में इस चीज को जान के रखो कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। For all that you have done, you have to give an account to God. जो कुछ भी तूने किया है उसके लिए परमेश्वर को हमें लेखा देना पड़ेगा। You have to give an account to God for the time that you have spent. हमको परमेश्वर को लेखा देना है उस समय के लिए जिसको हमने बिताया है। You have to give an account to God for the money you handled. हमको परमेश्वर को लेखा देना है उस पैसों के लिए जिसका हमने संचालन किया है। You have to give an account to God for how moral or immoral you lived your life. हमको अपने जीवन का परमेश्वर को जो है लेखा देना है, जिस तरह से नैतिक और अनैतिक जीवन हमने बिताया है। So while we are enjoying this life, इसलिए जब हम इस जीवन का आनंद उठा रहे let's हैं, live responsibly. आइए जिम्मेदारी के साथ इस जीवन को बिताएं, So that when the day comes when God will hold us accountable, the day of judgment, when we stand before God, we will be able to stand courageously before ताकि God. जब परमेश्वर का न्याय का दिन आए और हम परमेश्वर के सामने खड़े हो तो हम हियाव के साथ खड़े हो। So the preacher is not telling you go and do what you want. इसलिए प्रचारक हमें ये नहीं कह रहा है कि तुम जाओ और कुछ भी कर लो। I know many young people show these Bible verses to their mom and मुझे dad. पता है कई जवान बच्चे जो हैं अपने माता पिता को ये वाला पद दिखाते हैं। Bible says enjoy your youth. बाइबल कहती है अपने जवानी में जवानी के दिनों का आनंद So उठाओ। dad, I'm young. Let me enjoy my life इसलिए now. पापा मैं जवान हूँ, मुझे अपने जीवन का आनंद उठाने Well, दो। if you live responsibly and enjoy your life to the fullest in the way God designed it to be, you can enjoy life to the age of 80. अगर आप अपने जीवन को अच्छी तरह से बिताएं, आनंद भी उठाएं और जिम्मेदारी के साथ बिताएं, आप 80 वर्ष तक जी सकते हैं। Some of you young people need to talk to people like Lithika James here. आप में से कुछ जवान लोगों को जरूरी है कि आप बहन लतिका से बात करें, मिलें। You see her joy. Every Sunday I see her in the church. हर रविवार के सुबह वो कलीसिया में होती हैं। I never see her complaining. मैं कभी भी उनको शिकायत करता हुआ नहीं देखता। I never see her coming to the church with a long face. मैं कभी भी नहीं देखता कि वो एक लंबा चेहरा लेकर कलीसिया में आई She हैं। always comes with a smile. वो हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ कलीसिया में And that आती हैं। smile inspires me. और वो मुस्कुराहट मुझे भी प्रेरणा देती है। Her passion, she's one of the first person to be in the church. वो One of सब- the first person. वो सबसे पहली व्यक्ति होती है जो कलीसिया में आ जाती And है। I think she's the oldest in this room right now, और इस if I'm समय not mistaken. इस कमरे में वो सबसे ज्यादा हमसे सबसे बड़ी हैं। If you ask her, अगर आप उनसे पूछें, she will tell you the secret. वो आपको रहस्य बताएंगी। She's enjoying her life वो अपने जीवन का आनंद उठा रही हैं, because it is the life with God. क्योंकि वो जीवन परमेश्वर के साथ है। Life with God can be enjoyment. परमेश्वर के साथ का जीवन हमेशा आनंदित हो सकता है। Sometimes some pastors or some leaders or people like me, we get together to hang out and have fun. कई बार हम जो पासवान लोग हैं, जो अगुवे लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और आनंद उठाएं। We joke, we laugh, we have lots of fun. हम मजाक करते हैं, हम चुटकुले बांटते हैं, हम बहुत मजा करते And हैं। sometimes I realize just to have the same fun that we just had, a lot of people would have spent thousands of rupees on alcohol and drugs just to have the same fun. कई बार मैं सोचता हूँ कि जो आनंद हम लोगों ने अभी उठाया मजाक करके, कई लोग उसके लिए बहुत पैसे का खर्चा करते हैं
और तब आनंद उठाते हैं। You don't need alcohol to have fun. आपको पीने शराब की जरूरत नहीं है अपने You don't जीवन need का आनंद drugs to उठाने have के लिए। fun. आपको ये जो सारे नशीले पदार्थ होते हैं उनको लेने की जरूरत नहीं है अपने You don't जीवन need का to do आनंद उठाने sex के लिए। before marriage to have fun. शादी से पहले आपको किसी संबंध में, गलत संबंध में जाने की जरूरत नहीं है आनंद उठाने के Are लिए। you listening to me today? क्या आप आज सुबह के समय मुझे सुन रहे हैं? Life has its meaning and its जीवन purpose. जीवन का एक मकसद है, एक अर्थ है, And you can live it to enjoy it into the fullness. और आप उसको अच्छे से पूरी रीति से जी सकते हैं। Don't destroy the gift that God has given to you. परमेश्वर ने जो आपको दान दिया है उसको नाश ना कर दें। We will stand before God to give an account for our lives. हम परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होंगे ताकि हम उसके सामने लेखा दे Whether you सकें। are young or you're old, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप we वृद्ध हैं, all have to give an account to God. हम सबों को परमेश्वर को एक दिन लेखा देना है। Hallelujah. Before the judgment seat of God, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के पास there is no one righteous. कोई भी धर्मी नहीं है। Before a holy and just judge, उस न्यायी और धर्मी परमेश्वर के सामने we need an advocate. हमको एक सलाहकार चाहिए है। And who is that advocate? और वो सलाहकार कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह, He's our advocate. वो हमारा सलाहकार है। I don't come to Jesus. I don't come to God's judgment seat on my own. मैं परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के पास अकेला नहीं आता, Because if I come on my own, I stand condemned. क्योंकि अगर मैं अकेला अपने आप परमेश्वर के सिंहासन के पास जाऊंगा तो मैं दोषी हूं। But when I bring my lawyer, लेकिन जब मैं अपने प्रभु को अपने साथ ले when जाता I हूं, bring my advocate, जब मैं अपने सलाहकार को अपने साथ ले जाता I हूं, stand free मैं बिल्कुल एक स्वतंत्र होकर खड़ा होता because हूं, he paid the price for my क्योंकि sins. उसने मेरे पापों के लिए पहले से ही चुका दिया है दाम। That's the beauty of knowing Jesus. ये खूबसूरती है यीशु को जानने That's की। the beauty and the freedom of having Jesus in your life. ये खूबसूरती है और आजादी है यीशु को अपने जीवन में जानने की। Because whatever I do is really not going to cut it to pay for the price of my sins. क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो उस चीज के लिए मेरे पापों का मुझे उसका दाम नहीं चुकाना But है। what Jesus did on the cross लेकिन जो यीशु ने उस क्रूस पे किया is good enough. वो बहुत ही अच्छा है, It will do. वो काफी है, वो His करेगा, blood is sufficient उसका लहू काफी है and it will set you free. और वो आपको आजाद करेगा। And so we need to come to Jesus इसलिए Christ. हमको यीशु के पास आना है। So for the young people, many of you who are listening to me, इसलिए जवान लोग जो आज सुबह मुझे सुन रहे हैं, I pray that you will realize the need for Jesus कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन में यीशु की जरूरत को महसूस so that करेंगे, you can have His forgiveness, ताकि आप उस यीशु की क्षमा को अपने जीवन में so अनुभव that you can करेंगे, receive the sacrifice that He made on the cross of Calvary. ताकि उस क्रूस पर जो यीशु ने बलिदान दिया था उसको आप स्वीकार कर सकेंगे And you can come to God और आप परमेश्वर के पास आ and सकेंगे say, God, और परमेश्वर से कहेंगे, I know I have sinned. परमेश्वर मुझे पता है कि मैंने पाप किया I है, ask you to forgive me मैं आपसे मांगता हूं कि आप मुझे क्षमा कर दें and cleanse me. और मुझे धो दें। This is very serious, my friends. ये बहुत ही गंभीर है मेरे मित्रों। I was on the path of that destruction as a young boy. मैं एक जवान लड़का होकर उस राह में था जहां मेरा जीवन नष्ट हो जाता। Age of 14, age 15, age 16. 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र, 3 years 3 साल I walked away from God. मैं परमेश्वर से दूर होकर चला And I know where I would have been today और मैं जानता हूं कि आज मैं कहां होता if I did not give my life to Jesus. अगर मैंने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया I होता। wouldn't be standing here today. मैं आज सुबह यहाँ खड़ा नहीं I होता, wouldn't be having a wife like her. मेरे पास ऐसी पत्नी नहीं होती, I wouldn't be having children that I have. मेरे पास ऐसे बच्चे नहीं होते, I wouldn't be sharing anything to you. मैं कोई भी ऐसी चीजें आपसे बांट नहीं रहा होता। But look what Jesus has done. लेकिन यीशु ने देखिए मेरे लिए क्या किया। From being lost in the ways of this world, इस दुनिया के रास्तों में खो जाने से He gave लेकर me meaning and purpose. मेरे जीवन में उसने उद्देश्य और अर्थ को दिया। So don't squander your young age. इसलिए अपनी जवानी के दिनों को व्यर्थ ना The गवाएं। Bible says, remember your Creator in your young days. वचन कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। God will honor you यीशु परमेश्वर आपका सम्मान for करेगा, living right. अपना जीवन सही रीति से God बिताने will के honor लिए। you for the sacrifices you are making. परमेश्वर आपका आदर करेगा उन बलिदानों के लिए जो आप चुकता
चुकता करते हैं। God is not a debtor to give you a miserable life. वो किसी का कर्जदार, वो आपका कर्जदार नहीं है कि वो आपको जीवन Some में, of you are thinking that if I don't do what my friends does, I will be rejected, I will be alone. कई आप में से कई लोग ऐसे सोचते हैं, अगर मैं अपने मित्र के समान नहीं करूंगा तो मेरा भी तिरस्कार कर दिया जाएगा, When मैं you're अकेला हो 40 and जाऊंगा। when you're 50, when you're 60, none of those friends are going to walk with you. जब आप 40, 50, 60 वर्ष के होंगे, आप में आपके लिए वो उनमें से कोई भी मित्र आपका साथ नहीं देगा। It will be you, your wife, and your children. बस आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे होंगे, And even they may leave you. और शायद वो भी आपको छोड़ दें। But then it will be you and your God. तो बस फिर आप और आपका परमेश्वर होगा। So you need to choose now तो इसलिए अभी से आपको चुनाव करना है। what you want when you get there. जब आप वहां होंगे तो आपको क्या चाहिए होगा। Young people, live your life right now with the future in your mind. जवान लोग अपने जीवन को वर्तमान में ऐसे जिए कि आप अपने भविष्य को अपने दिमाग में रखें। I gave my life to Jesus at the age of 17. 17 साल की वर्ष में मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। I know I wasted 3 years of my life. मुझे पता है मैंने अपने जीवन के 3 साल व्यर्थ गवाए, But I thank God लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ that I made the right कि decision. मैंने एक सही निर्णय को लिया है। Amen. Amen. I pray that the Lord gives you a regenerate heart, a heart awakened to the word of God. मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके हृदयों में ऐसी शक्ति दे कि आप परमेश्वर के वचन के लिए और भी प्रेमी बन जाएं। And you will get up each morning and you look at the sun and say, thank you God for this life. और आप हर दिन सुबह उठेंगे और सूर्य की तरफ देखेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर धन्यवाद इस जीवन के लिए जो आपने मुझे दिया है। Hallelujah. I salute, people like Silas. मैं साइलस जैसे लोगों को मैं सलाम करता हूँ। He is a young man. जवान लड़का है। He is the other side of Latika James. वो दूसरा तरफ है, दूसरी छोर है सिस्टर लतिका के Just समान। stand up, Silas. Let people see you. Come on, stand where you चाहता हूँ are. Silas He's भाई खड़े हो our जाएं। drummer. He's an amazing वो drummer. हमारे लिए ड्रम बजाते हैं यहाँ He कलीसिया में। came to India all the way from Nigeria. वो नाइजीरिया से हमारे बीच में भारत में आए। He lives here alone. वो यहाँ अकेले रहते हैं। I know him very well. मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। But do you know one thing about this guy? आपको पता है एक बात इस भाई के बारे में? He never missed church. वो कभी भी कलीसिया छोड़ते नहीं है। He comes to church every Sunday. वो हर रविवार को कलीसिया में आते हैं। Can I tell you something else? आपको कुछ और भी बताऊं मैं आपको? Every penny he gets, हर एक सिक्का जो वो कमाते हैं, he gives 10% to the church. उसका दशवांश वो कलीसिया में देते हैं Every month. हर महीने। He's a student. वो एक विद्यार्थी है And then on top of that, और उसके ऊपर he spends hours practicing with our team and he plays for us on Sunday वो morning. घंटे बिताते हैं और हमारी जो वर्शिप आराधना की टीम है उनके साथ यहाँ बजाते हैं। Do you think this guy has a future? आपको लगता है इस भाई का भविष्य है? Do you think he will enjoy his life? आपको लगता है कि वो अपने जीवन का आनंद उठाएंगे? Do you think he's enjoying his life right now? क्या आपको लगता है कि वो अभी भी अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं? I think he's having the time of his life, even though he's away from his mom and dad. मुझे पता है कि जबकि वो अपने माता पिता से दूर है लेकिन वो अभी भी अपने जीवन का सबसे So अच्छा I've समय shown you बिता रहे two हैं। poles of life. मैंने आपको दो क्षेत्र दिखाए The हैं young, जीवन के, एक जवान, The old. एक बुजुर्ग। We can enjoy life. हम अपना जीवन का आनंद उठा सकते हैं। You can have everything you want. आप सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। You see, rule books are for who? Who needs police? किसको चाहिए होती है पुलिस? Criminals need the police. जो गलत काम करते हैं उन लोगों को पुलिस चाहिए होती है। The rule books are for those who break laws. जो नियम की जो किताब है वो उन लोगों के लिए होती है जो नियमों को तोड़ते हैं। Many people don't want to read the Bible कई लोग बाइबल पढ़ना ही नहीं चाहते You know हैं। why? आपको पता है क्यों? because they're breaking it. क्योंकि वो उसके नियमों को तोड़ रहे हैं They know they're breaking it. और वो जानते हैं कि वो उसको तोड़ते हैं, And so they don't want to read it. इसलिए वो उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। But you will love the Bible लेकिन आप बाइबल से प्रेम करेंगे if you're making an effort to live by it. अगर आप प्रयत्न करते हैं कि आप उसके अनुसार अपना जीवन You will बिताएंगे। read it every day. आप इसको प्रतिदिन पढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। As you bask in the light of each day, जब आप प्रतिदिन के जीवन का आनंद उठाते हैं, may your sight be fixed upon the glory of Jesus होने Christ. पाए कि आपकी दृष्टि परमेश्वर की महिमा की ओर गड़ी रहे। That brings me to my final point. ये मुझे आखिरी बिंदु की ओर लेकर चलता है। Have a clear mind. बहुत जरूरी है कि
हमारे पास एक स्पष्ट दिमाग हो, Have a clear mind. स्पष्ट दिमाग हो। That means to remove the vexation and the pain from our ये life. बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि हमको अपने जीवन से हर दर्द को, हर खेद को दूर करना है। Let's look at verse 10. आइए मिलकर 10वें पद को देखते हैं। Chapter 11, verse 10. 11वां अध्याय उसका 10वां पद। It says, so then, banish anxiety from your heart. अपने मन से खेद और हृदय से दुख को दूर कर। Banish, get rid of anxiety from your heart. अपने मन में से सारे खेद को दूर कर दो। That's something you have to do. ये ऐसी कोई चीज है जो हमें करनी है। As we seek to enjoy the sweetness of the gift of life, जब हम इस चीज की खोज कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में जो आनंद है, जो मिठास है, उसका आनंद उठाएं and live for the glory of God, और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को बिताएं। the preacher is asking us to remove vexation and pain from our life. प्रचारक हमसे अनुरोध करता है कि हम अपने जीवन से खेद और दुख को दूर कर दें। The word vexation, what the writer means is to remove anger from us. यहाँ पे जो लेखक जो शब्द खेद इस्तेमाल कर रहा है, उसका मतलब यह है कि अपने जीवन से क्रोध को दूर कर दो। Anger, it also means grievances that you are storing up in your heart. इसका मतलब ये भी है कि हमारे जीवन में जो हम दर्द को या दुख को रख रहे हैं, उसको हमको अपने जीवन से दूर करना है। Or irritations. या जो चिड़चिड़ाहट है हमारे अंदर, उसको हमको दूर करना है। Anger, क्रोध, grievances, दुख, irritations. चिड़चिड़ाहट। Now, over the course of our life, हमारे जीवन की पूरी रीति से जो हम जीते हैं, we are facing lot of challenges. हम बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। The way how our parents treated जिस us, तरह से हमारे माता पिता ने हमारे साथ व्यवहार किया, the way how your uncle or your aunt sexually abused you. हमारी आंटी और अंकल ने हमको जिस तरह से हमको हमारा शोषण किया। I don't know what has happened to your life. मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में क्या हुआ है, But if I am to live today by the things that people have done to me, अगर मुझे अपना जीवन आज उस तरह से जीना है कि जो लोगों ने मेरे लिए किया था, I will have all of this. मेरे पास ये सब चीजें होंगी। I'll be an angry old man. मैं बहुत ही एक गुस्से वाला व्यक्ति हूँ। I cannot like any people. मैं किसी भी व्यक्ति को पसंद ही नहीं करूंगा। I'll be angry at everything and anything मैं किसी भी चीज के लिए और हर चीज के लिए क्रोधित रहूंगा। because of what I went through. I'm subduing those things in my life. I have not dealt with those issues, and therefore those issues of the past produces anger in our hearts. क्योंकि जिन चीजों से मैं होकर गुजरा हूं, उन चीजों को मैंने दबा दिया है और उसी के कारण वो क्रोध मेरे बाहर आता है। So it's the things that are buried under in your life that you have not dealt with that is causing you to be an angry person all the क्या time. ऐसी कोई चीजें हैं जिसको आपने अपने अंदर दबा दिया है और उसको बाहर नहीं निकाला है, जिसके कारण आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है? Maybe you are living in the grief शायद आप दुख में जीवन बिता रहे हैं। of the things that you were denied of, ऐसा दुख जिसके लिए आप, जिन चीजों के लिए आपको इनकार किया गया, or grief of your loved ones that you lost in life. या ऐसा दुख आपके जीवन में जिसमें आपने अपने प्रिय लोगों को खो दिया। So with life that we have in this crooked fallen world, इसलिए इस दुष्ट दुनिया में जिसमें हमारा जीवन है, there are plenty of circumstances that would vexate us. ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जो हमारे जीवन को खेद पहुंचा सकती हैं। Pain here that Solomon is talking about is the pain of the brokenness of a breaking down of this physical body. ये यहाँ पे दुख जो यहाँ पे बताया जा रहा है लेखक के द्वारा, वो ये है, वो दर्द जो दुख हमको हमारे शरीर टूटने से मिलता है। As you get old, जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं, things become a little bit different. चीजें थोड़ी सी अलग होने लगती हैं And we can start complaining. और हम शिकायत करना शुरू कर सकते हैं। We can murmur. हम शायद बुड़बुड़ा सकते हैं। So if you are in that age category, uncle in the back, अगर आप उस स्तर में हैं, anybody who is in हमारे अंकल the हैं। 50 and above, it's time to start. Things, nuts and balls are becoming जो loose. 50 और 50 से ऊपर है, उनके सारे पेच वेच सब हिल चुके हैं। So Solomon is saying, सुलेमान कह रहा है, don't let the pain of life
take away the fun and the excitement. जीवन के जो दुख है उसको अनुमति ना दे कि वो आपके जीवन का आनंद को दूर कर दे। While we cannot remove every vexation and pain from our जबकि हम lives, अपने जीवन से सारे खेदों को हटा नहीं सकते हैं। we should not adopt a mindset that this is how life is going to be. I'm going to have to live in this pain. हमको ऐसी मानसिकता अपने दिमाग में नहीं रखनी है कि यही जीवन है और मुझे अपना जीवन ऐसे ही जीना है। We need to look at the possibility of what God can do to set me free. हमको संभवताएं देखनी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है। But sometimes we have some anxious issues like me. I have a little bit of hypertension. और जैसे मैं एक वैसा व्यक्ति हूँ जो चिंता करता हूँ और मुझे ज्यादा घबराहट हो जाती है। So sometimes the Lord calls us to take some of these anxiousness upon us. और कई बार परमेश्वर हमको देता है अनुमति कि हम इन सारी घबराहट को अपने ऊपर ले लें। Look at 2 Corinthians chapter 11 verse 28. दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय का 28वां पद। We see Paul the apostle being anxious for all the churches. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस जो है कलीसियाओं के विषय में चिंता कर रहा है। But that anxiousness for his church and the churches that he was overseeing did not stop him, or it did not debilitate him. और हम देखते हैं कि वो जो कलीसियाओं की जिनकी देखभाल कर रहा था उन चीजों से उन्हें उसको परेशान नहीं किया। But don't become anxious about my son in nursery class only got 40 marks. लेकिन उस चीज के लिए घबराने की हमें जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा जो है वो नर्सरी क्लास में उसको सिर्फ 14 ही नंबर मिले। Don't be a miserable person just for the sake of being miserable. आप सिर्फ एक ऐसे ही एक दुखित से व्यक्ति ना बन जाएं सिर्फ एक दुख के लिए। And so Solomon says, इसलिए सुलेमान कहता है have a clear mind. आपको ये बहुत जरूरी है कि एक स्पष्ट दिमाग हो। Billy Graham said like this, बिली ग्रैहम ने ऐसा कहा है, most of all, let the word of God fill you and renew your mind every day. ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन आपको भर दे और आपके दिमाग को नया बना दे। When our minds are on Christ, जब हमारी बुद्धि हमारा दिमाग मसीह में होता है, Satan has little room to maneuver in our life. शैतान के पास बहुत कम सी जगह होती है कि वो हमारे जीवन को उसका घात करे। Keep our minds simple. अपने दिमाग को सरल रखें। Amen. Secondly, दूसरी बात, have a clean body. ये बहुत जरूरी है कि हमारा एक साफ शरीर स्पष्ट हो। So look at second part of verse 10. And cast off the troubles of your body. अपनी देह से दुख को दूर कर। First, be anxious, remove anxiety from your heart. वहां लिखा है कि मन से खेद हटा दे। Number 2, दूसरी बात, cast off the troubles of your body. अपने देह से दुख को दूर कर दे। So what do you do when you experience pain in your body that cannot be just taken away by a needle or a surgery or something like that? तो आप क्या करते हैं जब आपके शरीर में आपको दुख महसूस होता है और वो किसी ऑपरेशन या किसी चीज के द्वारा आप दूर नहीं कर सकते हैं? My wife suffers from back pain that is chronic and it is never ending. मेरी पत्नी जो है वो कमर दर्द से होके गुजरती है और वो ऐसा दर्द है जो कभी भी खत्म नहीं होता। Paul says to the Philippians, पौलुस कहता है फिलिपियों से, chapter 4 verse 6 to 7. चौथा अध्याय उसका 6 और 7वां पद। It says, do not be anxious about anything, वहां ऐसा लिखता है वो किसी भी बात की चिंता मत कर, but in everything by prayer and supplication. लेकिन हर बातों में धन्यवाद और निवेदन के साथ With thanksgiving, let your requests be made known to God. विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर। And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ तब Jesus. परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। So what does she do? तो वो क्या करती है? She goes to God in prayer. वो परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं। God, I can't bear this pain. परमेश्वर ये दर्द मैं सह नहीं सकती। Sometimes I see her crying. मैं कभी-कभी उन्हें रोते हुए देखता हूँ। We take everything to God. हम हर चीजों को परमेश्वर के पास ले जाते हैं। But even then, don't be anxious. लेकिन उस समय में भी घबराए ना। Don't be anxious. किसी भी चीज के लिए चिंता ना करें। But in everything by prayer and लेकिन supplication, हर चीजों में प्रार्थना और निवेदन के with साथ, thanksgiving, let your requests be made known to धन्यवाद God. के साथ अपनी विनती निवेदनों को परमेश्वर
के सामने When you प्रस्तुत करना है। pray, जब आप प्रार्थना करते God हैं, will give you His peace. परमेश्वर आपको अपनी शांति देगा। Whatever your circumstances might जो be, भी कुछ आपकी परिस्थितियां क्यों ना how होने पाए, painful it might चाहे be, वो कितनी भी दर्द से भरी क्यों ना होने God will पाए, give you peace. परमेश्वर आपको शांति देगा। I look at some of the children of God and see how they went through those struggles. मैं कभी कभी परमेश्वर के बच्चों को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कैसे वो अपने जीवन में संघर्षों से होकर गुजरे हैं। I look at that situation and say, I will never be able to go through मैं that. जब उनकी परिस्थितियों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं शायद उनसे उस चीज से होकर नहीं गुजर सकता था, But they did. लेकिन उन्होंने वो गुजरे। And if I have to go through that, और अगर मुझे उससे गुजरना पड़ेगा तो and if I do what they did, अगर मैं वो करूं जो उन्होंने किया था, I also can go through it. शायद मैं भी उससे होकर गुजर सकता हूँ। You know what they did? आपको पता है उन्होंने क्या किया? They prayed. उन्होंने प्रार्थना They की। prayed. उन्होंने प्रार्थना की And the peace of God was in their और hearts परमेश्वर का शांति उनके दिल में था, to endure the sufferings that they went through. ताकि उस पीड़ा से जिससे वो होकर गुजरे थे उसको बर्दाश्त कर सके। Hallelujah. हालेलुया। So, for number one, इसलिए सबसे पहली बात, you need to have a clear mind. आपके पास एक स्पष्ट दिमाग होना Number चाहिए है। two, दूसरी बात, have a clean body. आपके पास एक स्वच्छ शरीर होना चाहिए है। A body that is committed to God. एक ऐसा शरीर जो परमेश्वर के लिए समर्पित हो। And I'm going to close. और मैं यहाँ पे समाप्त करने जा रहा हूँ। Live a life committed to God. एक ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर के लिए समर्पित हो। Live a life committed to God. ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर के लिए समर्पित हो। Look at chapter 12, verse 1. 12वें अध्याय का पहला पद देखते It हैं। says, remember your creator in the days of your youth. यहाँ लिखा है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, Before the days of your trouble comes and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. जहाँ पे इससे पहले कि तेरी विपत्ति के दिन या तेरे वर्ष आए, इनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। So the preacher is telling us to remember the creator of our youth, not because judgment is coming, यहाँ पर जो प्रचारक है वो ये नहीं कह रहा कि अपने सृजनहार को स्मरण कर क्योंकि तेरा न्याय आने वाला है, but to remember your creator in your youth for the joy of life that it offers to you. लेकिन अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर ताकि तू जीवन में जो आने वाला आनंद है उसका आनंद उठा सके। Charles Bridge, a man of God, said like एक this. परमेश्वर के जन चार्ल्स ब्रिज ने ऐसा कहा है, Many have remembered their creator too late in life, कई लोगों ने अपने सृजनहार को अपने जीवन के अंत में स्मरण किया, but none too soon. लेकिन किसी ने भी जल्दी नहीं किया। As I look back to my life, जब मैं अपने जीवन को देखता हूं पीछे मुड़कर, I do not regret a single day, मैं किसी भी एक चीज के लिए पछताता नहीं हूं। a simple thing, एक साधारण सी चीज के लिए नहीं anything that पछताता। I give up जो भी चीजों के ऊपर मैंने हार मान ली, मैं पछताता नहीं हूं, in order to follow Jesus. ताकि मैं उस यीशु का पीछा कर सकूं। I'm glad I let go of those things मैं खुश हूं, आनंदित हूं कि मैं उन चीजों को जाने देता हूं, and I chose Jesus. क्योंकि मैंने परमेश्वर को चुन लिया है। Amen. Who will you choose? किसका चुनाव आप करेंगे आज? $1 million क्या उन करोड़ों के उस डॉलर्स के लिए or Jesus? या यीशु के लिए? A good friend एक अच्छा मित्र or Jesus? या यीशु? Jesus is good. यीशु अच्छा है, He will never let you down. वो कभी भी आपको नीचे नहीं होने देगा, He will bless you. वो आपको आशीष देगा। A wise pundit said about life like this. एक व्यक्ति ने अब जीवन के बारे में ऐसा कहा है, Your life is like a coin. जीवन जो है एक सिक्के के समान है। You can spend it in any way you wish, आप जिस तरह से भी चाहते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, but you can only spend it once. लेकिन आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। Think about that. सोचिए इसके बारे में। Each one of us are given one shot at this life. हम सबों को हमारे जीवन में एक ही बार वो क्षण मिला है। We're not going to be given a second life. We are not going to reincarnate and become something else. हमको एक ही जीवन मिला है और ऐसा नहीं होगा कि हम दोबारा से अवतार लेकर पैदा होंगे। We are what we are. हम जो हैं वो हैं। We will either spend our destiny in heaven or in hell. या तो हम अपना जीवन स्वर्ग में बिताएंगे या नरक में बिताएंगे। So in this one life that I have, इसलिए ये एक जीवन जो मुझे मिला है, let us be determined to enjoy this life हमको ये निर्णय लेना है, दृढ़ निश्चय करना है कि हमको अपने जीवन का आनंद उठाना है, within God's plan, within purpose. परमेश्वर की उस योजना में, परमेश्वर के उस मकसद में।